The Honorable Union Minister of Port, Shipping and Waterways, Sri Sarbanand Sonawal sir, will brief the media on various development issues, including the development of Northern region. I extend a warm welcome to all our media friends. Now I request the Honorable Union Minister Sri Sarbanand Sonawal sir to address the media. Over to sir. नमस्कार। पहले मैं अपने असमिया में शुरू करूँ। असम से भी है। असम तो ठीक है तो ठीक है, मैं फटाफट हेड कोई पत्रकार बंधु, आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। आप सबको मालूम है पिछली 11 साल के अंदर देश में जो परिवर्तन संभव हुई है, और ये परिवर्तन के वजह से देश ने आज विकास की रास्ते को तेज से पकड़ लिया है और गति दिया है। और इसलिए आज हमारे देश दुनिया की एक उल्लेखनीय देश के हिसाब से अपना पहचान बना चुका है। ये सब परिवर्तन संभव हुई है इसलिए हमारे देश के आदर्शवादी नेता, वर्तमान दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुशल नेतृत्व की वजह से, उनके विजन, उनके डायनेमिक लीडरशिप की वजह से आज देश का हर प्रांत जाग उठा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, और हमारी जो भी आइलैंड्स है, चाहे लक्षद्वीप हो, अंडमान निकोबार आइलैंड हो, हर प्रांत में आज विकास संभव हुई है। लेकिन इसी देश को इसलिए कई दशक तक दुनिया में एक कमजोर एक हिस्सा बना के रखा था कांग्रेस सरकार ने, क्योंकि कई साल उन्होंने राज किया, केंद्र में भी रहे, राज्य में भी रहे, बार बार जनता ने मौका उन लोगों को दिया था। इतनी सुनहरा मौका मिलने का बावजूद कांग्रेस कुछ नहीं करता। खास करके मैं नॉर्थ ईस्ट से हूं, बीइंग ए नॉर्थ ईस्टर्नर, I have seen the reality. What is the transformation? The area which was all the time declared to be the disturbed area, considered to be the disturbed area, projected to be the disturbed area by Congress regime, now it's become the new engine for India's growth. This is the exemplary transformation, and it happens only because of Honorable Prime Minister's special interest and his dedication, his devotion. His policy program ultimately uplifted entire Northeast to a great extent in all the sectors. Congress has totally failed to study Northeast and also to discover the available potentialities, possibilities and prosperities of Northeast. But Honorable Prime Minister, after becoming, particularly in 2014, when Honorable Prime Minister Narendra Modi ji have taken over the responsibility of the nation as a Prime Minister,
he has given full concentration, and particularly most backward region. And that is why he decided that if this part of the region has to be taken to the central stage of development, it was always considered to be the region located in the periphery. But he has decided and taken a strong determination that we will have to bring this particular region to the central stage of development. That is why he has directed all the Council of Ministers to visit Northeast every fortnight with their ministerial departmental scheme and program, and also directed all the senior officials to visit Northeast and to understand the hopes and expectations of Northeasterners. That is the way he has started to promote Northeast, and ultimately in the last 11 years, whatever development we have seen, it is unique. Now it has become one of the most favorable destinations for investment, whether it is Indian like national companies or international companies. Now it's become lovable destination because of peace and tranquility. Earlier, Congress intentionally just to be there in the helm of affairs, powers, उन्होंने वहां कई डिस्टर्बेंस उन्होंने खुद खड़ा की है और इसके स्थायी समाधान के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया, क्योंकि उनकी कोई सिंसियरिटी थी ही नहीं। उनको ऐसा लगता था कि हमें सिर्फ सत्ता मिलना चाहिए, विकास नहीं चाहिए। इसलिए उन्होंने इतना पोटेंशियल, शक्ति, संपदा और संभावनाओं से भरा हुआ नॉर्थ ईस्ट को उन्होंने विकास के रास्ते पर ले नहीं पाया। लेकिन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने पहले वहां शांति प्रतिष्ठा की है, और शांति प्रतिष्ठा के लिए जितना भी वहां इंसर्जेंट ग्रुप रहे, सबका साथ उनके निर्देश के मुताबिक परमादरणीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी ने भी हर प्रदेश का साथ बातचीत करके, हर ग्रुप का साथ बातचीत करके आखिरी में सारे इलाका में शांति संभव की है। और शांति आने का बाद विकास के सिलसिला में विशेष रूप से अलग अलग कदम उठाए गए हैं। तो इसलिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सिंसियरिटी, जो कमिटमेंट, जो डिवोशन है देश के लिए, देश का हर प्रांत जाग उठे, देश का हर प्रांत की जनता को सामाजिक न्याय मिले, अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए सुनहरा मौका मिले, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस नीति के आधारित सबको जोड़ा और एक भारत श्रेष्ठ भारत मंत्र के द्वारा आज जिस हिसाब से जनता को साहस दी है, मनोबल बढ़ाया है, इसके लिए आज नॉर्थ ईस्ट आपने खुद देखा है, सेमीकंडक्टर से लेकर आज नुमलगढ़ रिफाइनरी को नवरत्न स्टेटस भी दी गई है। कई मतलब ऐसा बहुत सा उदाहरण है। आज देखिए आइजॉल, किसी ने भी सोचा नहीं था इतनी ऊंचाई पे अवस्थित हमारे स्टेट कैपिटल मिजोरम की, वहां तक रेलवे कनेक्टिविटी हो सकता है। और इस तरफ आप देखिए सिलीगुड़ी से लेकर आप गैंगटॉक तक, कुल मिला के आपको मालूम है इट इज लोकेटेड 1600 meters above sea. So इतनी बड़े चुनौती भरा इलाका में भी आज कनेक्टिविटी संभव की है। और नॉर्थ ईस्ट में डबलिंग ऑफ रेलवे ट्रैक, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेलवे ट्रैक और एयरपोर्ट को कमर्शियल एयरपोर्ट बढ़ाने का काम, बड़े बड़े जैसे most leading institution in the different sector, agriculture, medical, in design,
in many sectors, management, all the national leading institutions have also been set up. As a result, right from student to the farmers, to the teachers, to the researchers, to the entrepreneurs, all the stakeholders of our democracy got surged up and got ample opportunity to grow. So this is the transformation Honorable Prime Minister has brought to the entire North-East. मैं तो नॉर्थ ईस्ट के होने की वजह से मैं महसूस ये गंभीर रूप से करता हूँ कि जिस प्रांत को कांग्रेस सरकार ने कितना नेग्लेक्ट किया और उनकी नेग्लेक्ट करने की वजह से ही हम लोगों को जगह नहीं मिला था, लेकिन आज परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट को विशेष रूप से मान्यता दी और नॉर्थ ईस्ट का साथ साथ देश का हर प्रांत को विकास के रास्ते पर ले जाने में उन्होंने जो भी विशेष रूप से कदम उठाए, इसके लिए मैं तो नॉर्थ ईस्टर होने के वजह से मैं विशेष रूप से परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और आप एंटायर साउथ ईस्ट एशिया में नॉर्थ ईस्ट को एक इंपॉर्टेंट हब, अलग अलग सेक्टर की हब बनाने के लिए भी जो भी कदम उठाया गया है एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए। पहले तो कांग्रेस ने लुक ईस्ट पॉलिसी बनाकर छोड़ दिया, ये तो सब पॉलिटिकल एक गिमिक थे, उन्होंने फॉलोअप कोई एक्शन नहीं लिया। बाद में परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा देखने से नहीं चलेगा, करना होगा, कुछ कदम उठाना होगा, इसलिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी लाए। एक्ट ईस्ट पॉलिसी को फिर ट्रांसलेट किया एक्शन में, जमीनी हकीकत से जोड़ा और इसलिए अलग अलग प्रोग्राम पॉलिसी have been adopted for the speedy growth of Northeast. As a result, this particular part become a very favorable destination for investment in every sector. If you visit any part of Northeast, whether it is Arunachal Pradesh, whether it is Mizoram, whether it is Meghalaya, whether it is Manipur, whether it is Tripura, whether it is Sikkim, whether it is Nagaland, whether it is Assam, everywhere you go, the connectivity and communication, what's a transformation. पहले हमारे नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा नदी नेशनल वाटरवेज 2 ब्रह्मपुत्र, इसमें सिर्फ 3 पुल होते थे। इसके वजह से हर यात्रा बहुत विलंब होते थे। यात्रा जब विलंब होती है तो विकास भी रुक जाता है। तो आज परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पहले तो आंदोलन की वजह से ये तीनों पुल संभव हुए। कांग्रेस के कार्यकाल में कई साल तक लोगों ने आंदोलन करना पड़ता था, दिल्ली आना पड़ता था, बार बार रिप्रेजेंटेशन देना पड़ता था। लंबे समय आंदोलन के बाद 3 पुल मिले, लेकिन परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बिना आंदोलन से नॉर्थ ईस्ट की लोगों को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने वहां आज 8 पुल उन्होंने खड़ा कर दिया। 8 पुल का निर्माण काम चल रहा है और 3 पुल तो अभी उसका ये साल मतलब ऑपरेशनल हो गया है। तो कई ऐसा योजना जिसके वजह से रेलवे कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, वाटरवेज, एयरवेज इन ऑल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हैव बीन टेकन ऑन द प्रायोरिटी सेक्टर। एज ए रिजल्ट, द नाउ नॉर्थ ईस्ट बिकम्स very attractive destination, and peace and tranquility have given lot of empowerment to the people, because the people earlier had the hesitation of going from one part to the other part because of the disturbance, but now peace everywhere. इसके वजह से आपने खुद देखा है आर्म फोर्स स्पेशल पावर को कैसे वहां से विड्रॉ की गई है। इसका मतलब साफ है, पीस हैज कम बैक टू द एंटायर नॉर्थ ईस्ट। और आज नॉर्थ ईस्ट में ये संभव इसलिए हुई है क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न की मन में ये विश्वास पैदा हुई है कि परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी बोलता है उसको निष्ठापूर्वक निभाते हैं। ऐसा कोई ये पॉलिटिकल सिर्फ आश्वासन ऐसा नहीं है, जो उन्होंने कहा है उसको कोई बेस्ट ऑफ हिज सिंसियरिटी लागू की है। तो इसलिए आज आप देखिए परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी खुद more than 70 times he has visited North East. First time in the history of India कोई प्रधानमंत्री जी ने इतना बार वहां मतलब विजिट की है और हर विजिट में विकास के लिए अलग अलग प्रोजेक्ट का काम शुरू की है।
लोकार्पण की है, शिलान्यास की है और परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी मंत्री परिषद की सदस्य को बताया है, यह निर्देश दी है, सभी अधिकारियों को भी स्पष्ट किया है। देखिए, भारत का ये अभिन्न अंग है। इस प्रांत को अगर हमने विकास के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ाया तो हम भारत पीछे रह जाएंगे। तो इसलिए आज उसी भावना शक्ति से सभी अधिकारी हो या मंत्री हो और प्रदेश सरकार ने भी साथ देकर आज जिस हिसाब से नॉर्थ ईस्ट को आगे बढ़ाया है, इसके लिए आज आपने खुद देखी है कि बार बार बीजेपी लेड एनडीए गठबंधन को कैसे लोगों ने अपनाया है, क्योंकि यहां विश्वास जुड़ा हुआ है। विश्वास सबसे बड़ा चीज है और विश्वास ऐसे हासिल नहीं की जाती है। विश्वास हासिल की जाती है जब आप ईमानदारी से, निष्ठापूर्वक अपने आश्वासन को आप उसको लागू करेंगे, जमीनी हकीकत से जुड़ेंगे, क्वालिटी इंप्लीमेंटेशन। पहले कांग्रेस का कार्यकाल में क्या होता था, कोई भी प्रोजेक्ट होता था तो प्रोजेक्ट में घोटाला घोटाला घोटाला, अल्टीमेटली पीपल ऑफ द नॉर्थ ईस्ट डिडंट गेट एनीथिंग। So ultimately, the people of Northeast have been deprived of their due share. But now 100% जो भी कार्यक्रम वहां शुरू होते हैं 100% उसको लागू की जाती है और गुड गवर्नेंस की वजह से आज सभी ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी सब कुछ दिखाई दी है। इसके लिए नई पीढ़ी भी आज बड़े खुल के आगे आया है और सब लोगों ने मन बनाया है, हाँ हमें आगे बढ़ाना है और देश को आत्मनिर्भर बनाना है, भारत को दुनिया के सबसे मजबूत एक विकसित राष्ट्र के हिसाब से खड़ा करना है। ऐसा भी आज नॉर्थ ईस्ट के लोगों ने मन बनाया है और इसी कार्यक्रम में सहयोग की है। तो मैं चाहता हूं कि आज जो विकास हुई है तो मुझे लगता है कि और ज्यादा दिन बाकी नहीं है कि नॉर्थ ईस्ट एक निश्चित रूप से देश के विकास की एक नई इंजन के रूप में अपना पहचान बना पाएंगे। कांग्रेस